Screen is visible to all. Is the screen visible? Yes, sir. So today we're going to start with how do we apply materials to the objects. So before we start learning about how do we apply material to the objects, we'll understand the properties of materials. So what happens when you change the parameter of the material? कौन से पैरामीटर से क्या होता है? So last time we saw about how do we place cameras and the different type of renders. Now if you want to come up the camera view, you can press P and Shift F प्रेस करेंगे तो फ्रेम विंडो जो है वो ऑफ हो जाएगा and you can view the full screen actually. Now we wanted to assign materials to these objects that we have over here, like the bed or to the floor or to the walls to the window. Okay, a lot of objects we have over here. So एक एक करके objects को material assign करना है. Okay, so to assign materials or to create a material and to assign, very simple. We need to press M on the keyboard for material editor. So M press करेंगे for material editor. Okay, or you can click on this icon over here. It says material editor. Okay, you can see यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है material editor करके. Okay, if you come to rendering menu, you find material editor, and you can take slate material editor also from here. Okay, click on material editor. Wait for frames. You can see the material editor dialog box will open up. Okay. Now material editor के दो modes होते हैं. One is compact material editor. This is compact material editor, and the other mode is the slate mode material. So if you click on the modes option again, to reload, and you click on slate material editor, get the slate material editor. I prefer to use slate material editor, okay, because it's much easier to use than the compact material. Okay, so if you want to change the mode of the material, come into the mode menu and change it to the slate material editor. ये ध्यान में रखना है आपको कि आप यहाँ पे slate material editor को select करो. ओके, ये ऊपर हमारे मेन्यू बार हैं, ये हमारे टूल बार्स हैं. ओके, और ये हमारा व्यूअर है बेसिकली. ठीक है, तो व्यू के अंदर हम लोग मल्टीपल रूम व्यूज क्रिएट कर सकते हैं. हर एक रूम का अलग अलग
टैब क्रिएट कर सकते हैं। सपोज ये लिविंग रूम है, यहाँ पे हम लोग इसको रीनेम कर सकते हैं, या बेडरूम है तो बेडरूम नेम कर सकते हैं, बेडरूम, बेडरूम का टैब बन गया। देन राइट क्लिक, क्रिएट न्यू व्यू, इसके लिए हम लोग लिविंग रूम कर देते हैं, लिविंग रूम का एक डिफरेंट टैब्स बना सकते हो, डिफरेंट व्यूज बना सकते हो। तो बेडरूम में सारे बेडरूम मटेरियल्स हो गए, लिविंग रूम में लिविंग रूम मटेरियल्स हो गए। तो ऑर्गेनाइज आप अच्छे से करो यहाँ से, ओके, यहाँ से भी आप चूज कर सकते हो बेडरूम, ओके, एंड वी कैन क्रिएट आवर मटेरियल ओवर हियर। तो यहाँ पे एक भी मटेरियल नहीं है, मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। So we'll create our own material. To create our own material, I'm going to simply right click material, and I can either use general material और the Arnold material. Okay, ये दोनों material में से कोई भी एक material को हम लोग use कर सकते हैं. So I'm going to use general material only most of the time. Okay, and in general material also I'm getting all of these different types of materials. Okay, so इसमें से हम लोग कुछ selected material ही करेंगे, जैसे physical material करेंगे. We're going to do double-sided material and multi-sub material basically. Okay, so we're not going to do blend material or matte shadow material or PRB material, PBR material basically, or shell materials. We're not going to use that. Okay, we're going to use physical material, double-sided material, and multi-sub object material. Okay, so let me come and take first is our physical material. So when I take physical material, this is our physical material comes into the view. ओके, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो यू कैन सी एक डैश लाइन रन हो रही है इसके साइड्स पर। ओके, दिस इंडिकेट कि यहाँ पे जो पैरामीटर हम लोग जो देख रहे हैं वो इस मटेरियल का है। तो अगर मैंने दो तीन मल्टीपल मटेरियल्स क्रिएट करके रखा हुआ है तो इस पे देखो डैश लाइन अपीयर नहीं कर रही। ओके, अभी अपीयर हो रहा है। तो अभी जो पैरामीटर देख रहे हैं वो इस मटेरियल का है। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो अभी जो पैरामीटर यहाँ पे देख रहे हैं राइट साइड पे वो मटेरियल नंबर 5 का है। ओके, मटेरियल नंबर 6 है। तो अगर मैं मटेरियल नंबर 6 सिलेक्ट करता हूँ तो मटेरियल नंबर 6 का पैरामीटर शो करेगा। मटेरियल 5 को अगर सिलेक्ट करूंगा तो मटेरियल 5 का यहाँ पे पैरामीटर शो करेगा। ओके, तो इस पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो उसका पैरामीटर शो करेगा। इसको सिलेक्ट करेगी तो डैश लाइन इंडिकेट होनी चाहिए तो वो उसका पैरामीटर शो करेगा। ओके, राइट। सो अगर मैं इसके आइकन के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो आइकन मैक्सिमाइज होगा, और आइकन पे डबल क्लिक करूंगा तो आइकन मिनिमाइज होगा। तो आइकन को अगर मैक्सिमम में देखना है तो डबल क्लिक करो तो यू कैन व्यू द आइकन इन अ लार्ज साइज। ओके, अब यहाँ पे इसको आप कोलैप्स भी कर सकते हो प्रॉपर्टीज को। ये कोलैप्स कर दिए तो प्रॉपर्टीज कोलैप्स हो जाएगी, प्लस पे क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टीज एक्सपैंड होगी। ओके, नाउ मटेरियल में फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे आप मटेरियल को सिलेक्ट करते हो, ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो आपको करना चाहिए आफ्टर यू सिलेक्ट द मटेरियल, दैट यू नेम द मटेरियल एक्चुअली। तो किस पर्पस के लिए आप मटेरियल क्रिएट कर रहे हो, कौन से ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होने वाला है, मटेरियल का टाइप डिस्क्रिप्शन क्या है, उस हिसाब से आपको नेमिंग करना चाहिए। ओके, सो सपोजिंगली ये मटेरियल हम लोग फ्लोरिंग के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे मटेरियल नेम दे देंगे। ओके, सो दिस इज फॉर द फ्लोरिंग, फ्लोरिंग के लिए क्रिएट कर रहे हैं। ओके, फ्लोरिंग, बट किस फ्लोर के लिए क्रिएट कर रहे हैं, बेडरूम फ्लोर के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग डैश करके बेडरूम लिख देंगे, फ्लोरिंग डैश बेडरूम, एंड डैश करके कौन सा टाइप ऑफ फ्लोर यूज करने वाले, टाइल्स है या वुड है या स्टोन है या मार्बल है, व्हाट टाइप यू गोना यूज यू कैन provide. Suppose I'm going to use tiles, I'm going to provide tiles over here. Okay, so flooring dash bedroom dash tiles. Okay, so इस तरह से we have to name the material always. Okay, अगर if you're creating material like laminates, so you write it down. Okay, it's a laminate. Then कौन से particularly room के लिए आप create कर रहे हो तो रूम का नाम, एंड किस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने वाले हो उस ऑब्जेक्ट का नाम भी आप वहाँ पे टाइप कर सकते हो। सपोज वार्डरोब पे अप्लाई करने वाले हो तो वार्डरोब, साइड टेबल्स पे अप्लाई करने वाले हो तो साइड टेबल्स पे सकते हो। सो नेमिंग इज वेरी असेंशियल, दैट आप हर एक मटेरियल को नेम करो। ओके, आफ्टर यू हैव नेम द मटेरियल, उसके नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा प्रीसेट्स। ओके, नाउ प्रीसेट्स में यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्रीसेट्स बने हुए हैं। देखिए, ग्लॉसी पेंट बना हुआ है, मैट पेंट बना हुआ है, ओके, सैटिन वुड बना हुआ है, ग्लॉसी वुड बना हुआ है, रफ कंक्रीट बने हुए हैं। ओके, सो ऑलरेडी ये सब प्रीसेटेड मटेरियल्स है। ओके, तो अगर आपको मटेरियल बनाने को नहीं आ रहा है, सपोजिंग ग्लास मटेरियल बनाने को नहीं आता है, तो आप डायरेक्टली प्रीसेट को
सिलेक्ट कर सकते हो, या मेटल मटेरियल बनाना है तो आप डायरेक्टली प्रीसेट को सिलेक्ट कर सकते हो और वो उसी मटेरियल को क्रिएट कर लेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे इसको मैंने पिक किया एज सपोजिंगली एज ग्लास सॉलिड ज्योमेट्री, तो वो ग्लास मटेरियल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा। ये ग्लास मटेरियल है। अगर मैं यहाँ से प्रीसेट में से अगर मैं मेटल लेता हूँ, ब्रश मेटल, तो ब्रश मेटल मटेरियल क्रिएट कर लेगा। ओके, एंड अगर मैंने यहाँ से अगर प्रीसेट मैंने सिलेक्ट किया सपोजिंगली सिल्वर, तो सिल्वर मटेरियल क्रिएट कर देगा वो ऑटोमेटिकली। तो मुझे मटेरियल यहाँ पे क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट प्रीसेट्स मुझे सिलेक्ट करना है मटेरियल का कि कौन सा टाइप ऑफ प्रीसेट मुझे यूज करना है। ओके, एंड वो इस हिसाब से बिहेव करेगा बेसिकली। ओके, so you just have to select presets, okay, to create the materials. Glossy paint लेना है तो glossy paint भी आप ले सकते हैं। Okay, so you can create your material by using presets option also। और अगर preset से नहीं create करना है आपको, अपने हिसाब से create करना है, properties के हिसाब से create करना है, so after you name it, देन सिलेक्ट प्रीसेट। प्रीसेट के जस्ट नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है मटेरियल मोड। तो दो मटेरियल मोड है, एक सिंपल मटेरियल मोड है और एक एडवांस मटेरियल मोड है। तो हम लोग यहाँ पे से अभी सिलेक्ट करके रखेंगे एडवांस मटेरियल मोड बिकॉज वी वांट द एडवांस पैरामीटर्स। सिंपल रखोगे सो यू विल नॉट गेट मच एडिटिंग ऑप्शंस, तो मटेरियल को एडिट करने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे अगर मोड को सिंपल रखा रहेगा। सो वी कीप द मटेरियल मोड एज एडवांस। ओके, एंड नॉट सिलेक्टिंग एनी प्रीसेट, यू कैन सी चूज प्रीसेट में मैंने कुछ नहीं रखा, सिर्फ मोड मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया एडवांस। दैट्स अबाउट प्रीसेट्स। ओके, इसको कोलैप्स कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट थिंग इज गिवन अबाउट कोटिंग पैरामीटर। तो कोटिंग पैरामीटर मतलब क्या हुआ कि एक एडिशनल शाइन अगर अगर आपको मटेरियल पे असाइन करना है। ओके, तो शाइनी मटेरियल अगर क्रिएट करना है, ग्लॉसी मटेरियल अगर क्रिएट करना है, ओके, तो उसके ऊपर कोटिंग अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो करंटली कोटिंग पैरामीटर में कोट का वैल्यू अगर देखोगे तो 0 है। तो अगर मैं यहाँ पे कोटिंग पैरामीटर 1 दे देता हूँ तो मटेरियल जो है वो शाइनी हो जाएगा। ओके, ग्लॉसी हो जाएगा। ओके, और ग्लॉसीनेस अभी इतना दिख नहीं रहा है मटेरियल पे। ओके, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड प्रीव्यू को ऑन कर सकते हो या राइट क्लिक करके भी यहाँ पे से शो बैकग्राउंड इन प्रीव्यू ऑन कर सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना ग्लॉसी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर मैं कोटिंग पैरामीटर को 0 रखता हूँ, यू कैन सी देयर इज नो शाइन एक्चुअली, नो ग्लॉस इम्पैक्ट में। तो अगर आपको ग्लॉसी करना है तो आप उसको कोटिंग पैरामीटर दे सकते हो। फिर कोटिंग का कलर क्या रखना है वो आप चूज कर सकते हो। तो कोट का कलर अगर सपोजिंगली मैंने ब्लू दिया यहाँ पे, तो शाइन जो है वो ब्लू में शाइन करेगा या वट एवर कलर ये आप सिलेक्टेड। अगर सपोज कोट कलर मैंने यहाँ पे येलो दिया हुआ है तो शाइन ब्लू करेगा। सपोजिंगली ये मटेरियल में पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट पर असाइन भी कर लेता हूँ, जैसे कि फ्लोर पे असाइन कर लेता हूँ। तो फ्लोर को मैंने सिलेक्ट किया और आइसोलेट कर लिया, ये मेरा फ्लोरिंग है। एंड अगर मैं इस मटेरियल को राइट क्लिक करके असाइन करता हूँ तो वो मटेरियल असाइन हो जाएगा। अब अगर मैं इसके शाइन में अगर मैं जाऊँ, मीन्स अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ, शाइन येलोइश कर रहा है बेसिकली इधर। एंड मैं इसके कैमरा व्यू में जाके अगर रेंडर करता हूँ, शाइनी विथ येलो कलर शाइन है, बहुत ज़्यादा शाइन है, तो उसका वैल्यू ऑफ शाइन भी हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। सो वन वैल्यू अगर ज़्यादा है तो कैन रिड्यूस दैट वैल्यू टू पॉइंट हाफ। ओके, और मे बी 0.1% ऑफ शाइन, इसमें 0.1% ऑफ येलो कोट शाइन दे सकते हैं। और अभी इस पर जब रेंडर करेगी उसका जो बेस कलर है एक्चुअली वो ग्रे है, बट उस पर जो कोटिंग है, जो शाइनी का जो ये है जैसे मिड कलर है, दैट इज येलोइश। ओके, सो दैट इज कोटिंग। ओके, तो स्पेशली अगर मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊँ कोटिंग पैरामीटर कोट मटेरियल का,
So this is like coating, like polishing material. Okay, so पॉलिश होने के बाद देखो एक्स्ट्रा ग्लॉसी दिखता है, तो इस तरह से शाइन करता है बेसिकली इधर। okay, वो शाइन का कलर जो होगा, अभी मैंने येलो सेट किया तो येलो शाइन करेगा। अगर आपने कलर लाइक डिफरेंट वाइट रखा या अदर कलर रखा बेसिकली इधर, तो उस हिसाब से शाइन करेगा बेसिकली इधर। तो जनरली कोटिंग पैरामीटर्स जो होते हैं वो कार्स के ऊपर ज़्यादा अप्लाई किए जाते हैं ताकि वो ग्लॉस हो बेसिकली इधर। So if you want to make it more glossy or shiny or material, you can use coating parameters, material editor। यहाँ पे कोटिंग पैरामीटर में आप वैल्यू डाल सकते हो कोट का। आप यहाँ पे कलर डाल सकते हो बेसिकली, which color you want to use in coating। So you can provide white color, a slight of bit of glossy paint। आप वैल्यू ले सकते हो यहाँ पे। टफनेस चाहिए कि नहीं चाहिए, all that stuff you can apply it basically there। कलर कोट अप्लाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, all that stuff you can apply it। okay, टफनेस वाली जीरो ले लेते हैं तो नहीं any roughness in colors। that's coating parameter। so coating parameter के नीचे base parameter। now basic parameter में first thing है base color, means material color। तो मटेरियल कलर अगर आपको सपोजिंगली ब्लैक रखना था तो आप यहाँ पे जाके ब्लैक भी रख सकते हैं। सपोज ब्लैक मटेरियल रखा, so this is black material with coating is there, shine is there। okay, अगर शाइन को जीरो करना है तो मेक दैट शाइन टू गो जीरो। okay, and वन करना है तो आप थोड़ा सा वन शाइन भी दे सकते हैं एक्स्ट्रा। यू कैन सी द बेस कलर इज ब्लैक एंड द शाइन कलर इज वाइट। ओके, तो थोड़ा हल्का सा ग्लॉसी रहेगा विथ ब्लैक कलर द बेस। ओके, क्योंकि यहाँ पे असाइन भी है हमारा मॉडल के अंदर। थोड़ा सा रेंडरिंग में प्रिंट साइज असिस्टेंट में जाते हैं, डीपीआई थोड़ा कम कर लेते हैं और फाइल साइज हम लोग कोई A4 साइज रखते हैं 72 डीपीआई और उसे रेंडर करते हैं सो दैट थोड़ा सा क्विकली रेंडर हो। सो यू कैन सी दैट flooring is like very glossy, very glossy actually। If we want to remove that glossiness from that particularly floor, we can like come into the editor and यहाँ पे से जो कोड पैरामीटर है इसको हम जीरो कर सकते हैं। सो कोडिंग पैरामीटर ने इसको जीरो कर दिया एंड नाउ इफ आई अप्लाई इट, स्टिल ग्लॉसी है। उसमें से शाइन निकल गया बट ग्लॉस अभी भी है। तो ग्लॉस को भी अगर आपको निकाल देना है, सो इफ यू वांट टू रिमूव द ग्लॉस टोटली, सो व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पे से आप रिफ्लेक्शन पैरामीटर जो दिया हुआ है, यू कैन सी बेस कलर के नीचे रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है। इस वैल्यू को आप जीरो कर दोगे तो उसमें से ग्लॉस जो है वो निकल जाएगा। यू कैन सी नाउ देयर इज नो शाइन, नो ग्लॉसीनेस एट ऑल। यू कैन अप्लाई इट वंस अगेन, तो फ्लैट ब्लैक दिखाई देगा आपको या वॉट एवर बेस कलर आपने सिलेक्ट किया रहेगा। और अगर आपको इस पर भी कोटिंग चाहिए, शाइन चाहिए, ग्लॉस चाहिए, तो आप अभी देखो रिफ्लेक्शन में निकाल दिया बट कोटिंग में ऐड कर रहा हूँ, शाइन रहेगा। ग्लॉसीनेस और ग्लॉसीनेस वैल्यू अगर आपको कम करना है, मैट्रिक करना है, तो आप यहाँ पे रफनेस वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो। सपोज मैंने रफनेस दिया 0.5, तो थोड़ा सा रफ मैट हो जाएगा वो ग्लॉसी। इट्स लाइक देयर ग्लॉस है बट मैट फॉर्म में है। प्ले विद द कोटिंग पैरामीटर्स। रिफ्लेक्शन जनरली हम लोग ग्लास या मेटल के लिए यूज करते हैं, तो ये ग्लास तो है नहीं, मेटल नहीं है, तो हम लोग कोटिंग के साथ प्ले आउट कर रहे हैं। और कोटिंग अगर नहीं चाहिए तो आप इसको कोटिंग को जीरो भी कर सकते हैं। तो अगर मैंने सपोज कोटिंग रखा वन रखा और कोट का कलर सपोज मैंने यहाँ पे व्हाइट के बदले ब्लू टिक किया, स्काई ब्लू टाइप से, तो इसको रेंडर करते हैं। बेस कलर स्टिल वाइट रहेगा बट जब वो लाइट के कांटेक्ट में आएगा तो शाइन थोड़ा सा हल्का सा ब्लू में करेगा। और अगर मैंने थोड़ा सा ग्रीन या ऑड कलर लिया रहता,
हल्का सा येलोइश टाइप टिंट में दिखेगा, वो ब्लैक एंड येलोइश टिंट में दिखेगा, बस आपने कोटिंग कलर वहाँ पे वैसा रखा हुआ है। स्किन भी कोट कलर हम लोग वाइट रखते हैं। आप यहाँ पे कोटिंग वैल्यू 1 और उसका रफनेस कितना रखना है कोटिंग का, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ओके, कोट का जो IOR है, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, वो 1.52 ही रहेगा, इसे चेंज नहीं करेंगे। डू नॉट चेंज द कोटिंग IOR, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, कीपिंग दैट एज इट इज ओनली। अच्छा, अभी बेस कलर तो यहाँ पे हम लोग ने सिलेक्ट किया 1 दिया, और बेस कलर हम लोग ने ब्लैक दिया। अगर आपको कोई डिफरेंट कलर देना रहेगा तो आप डिफरेंट कलर भी दे सकते हो बेस का, तो जो कलर दोगे वो कलर आपका बेस कलर हो जाएगा। ओके, बट अगर सपोजिंगली बेस कलर नहीं देना था, बेस में टेक्सचर देना था हमें, ओके, टेक्सचर ऑफ टाइल या टेक्सचर ऑफ स्टोन या टेक्सचर ऑफ वुड, एनी सॉर्ट ऑफ टेक्सचर मटेरियल देना था, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कलर के बाजू में देखो एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, ओके, राइट साइड पे बॉक्स बना हुआ है, दिस वन, टिक मैप करके लिखा हुआ है कि क्लिक टू पिक अ मैप बेसिकली उधर, तो इस पे पिक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक मैप अप्लाई करेंगे, दैट इज आवर, सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च बॉक्स मिलता है ब्राउजर पे, सो विल ब्राउज फॉर टाइल्स। तो अगर आपको टाइल्स अगर नहीं मिल रहा है, टाइल्स है, ये हमारा वीरे लिखा हुआ है, वीरे बिटमैप्स है, तो नॉट यूजिंग वीरे एक्चुअली। यहाँ पे से शो इनकम्पेटिबिलिटी ऑन करेगी, ये एरो बटन दिया हुआ है यहाँ पे, शो इनकम्पेटिबिलिटी है, यहाँ से आप फिर टाइल्स सर्च करोगे, आपको लास्ट में टाइल्स मैप करके मिलेगा, टाइल्स मिला है, और इस टाइल्स मैप को हम लोग पिक करके ओपन कर सकते हैं, क्योंकि टाइल मैप ओपन होगा। टाइल मैप को हम लोग डबल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि टाइल मैप यहाँ पे लोड हो गया, फिर डबल टैप करेंगे तो हमें टाइल का प्रीव्यू मिलेगा। अब ये टाइल की प्रीव्यू में एक चीज़ थोड़ा सा गलत है, दैट इज कि ये हमारा एक टाइल सैंपल पीस है, उसमें भी डिवाइडेशन है टाइल्स का, 4x4 का डिवाइडेशन है, तो उसमें यहाँ पे क्या करेंगे, एडवांस कंट्रोलर दिया हुआ है, एडवांस कंट्रोलर ऑप्शन में जाएगी, एंड यहाँ पे जो टाइल काउंट दिया रहेगा, हॉरिजॉन्टल काउंट और वर्टिकल काउंट, मेक दैट टू 1, 1x1, 1x1 का टाइल चाहिए, तो यहाँ पे 1x1 किया, तो कैसे अभी एक टाइल सैंपल में हमें एक ही सैंपल अपीयरेंस मिल रहा है। ओके, अब टाइल सैंपल तो मिल गया हमें। अब ये टाइल सैंपल में अगर कलर आपको जो भी लगाना है, सपोजिंगली मुझे व्हाइट कलर का टाइल शेड में, यहाँ पे व्हाइट कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ, टाइल टेक्सचर में जाके एक टाइल सेटअप है यहाँ पे एडवांस कंट्रोलर में, और यहाँ पे हम लोग कलर सिलेक्ट कर सकते हैं टाइल का। ओके, सो वट एवर कलर ऑफ टाइल यू वांटेड यू कैन अप्लाई इट। ओके, तो एज यू कैन सी वहाँ पे भी फ्लोरिंग पे भी हमारा टाइल आ गया रहेगा। तो अगर मैं फ्लोर पे भी अगर अप्लाई करके बताऊँ, तो असाइंड है ऑलरेडी, फ्लोर पे टाइल आ चुका है, बट टाइल का ग्रूविंग या साइज हमें पता नहीं है कि टाइल का साइज एक्चुअली कितना है। तो फ्लोर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई में जाएगी, और इसे हम लोग यहाँ पे करेंगे UVW मैप। तो UVW मैप को अप्लाई करने पर यहाँ पे मैपिंग का टाइप को हम लोग बॉक्स रख सकते हैं या प्लानर रख सकते हैं। सपोज प्लानर रखा, यहाँ पे लेंथ ऑफ द टाइल पूछा है कि लेंथ ऑफ द टाइल कितना रहेगा, तो सपोज लेंथ ऑफ द टाइल हमारा रहेगा 900, हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे लेंथ ऑफ द टाइल इज 900। विथ ऑफ द टाइल पूछा है, तो यहाँ पे विथ ऑफ द टाइल हम लोग डाल सकते हैं एज 900, 900 बाई 900 का टाइल अभी हमें यहाँ पे पूरा पैटर्न में दिख रहा है। टाइल इज अपीयरिंग, सपोजिंगली ये टाइल को थोड़ा सा मूव करना है, तो अगर ये UVW मैप को एक्सपेंड करेगी, इसमें गिज्मो है, और इस गिज्मो को हम लोग फिर बाद में मूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइल आपका कहाँ पे रहेगा, सपोज यहाँ पे मेरा फर्स्ट टाइल पैटर्न रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइल को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो ओरिएंट पोजिशन ऑफ द फर्स्ट टाइल।
प्लेसमेंट ऑफ पोजीशन सेट आउट हुआ। और टाइल का साइज अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे लेंथ एंड विड्थ लिखा हुआ है यूवी में, तो आप यहाँ से लेंथ एंड विड्थ को चेंज कर सकते हैं। टाइल का कलर अगर आपको चेंज करना है तो मटेरियल एडिटर में जब जैसे वापस आओगे टाइल्स को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे एडवांस कंट्रोलर में टाइल कलर है, और आप यहाँ पे से टाइल कलर को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, हल्का सा ग्रेश ले सकते हो। ठीक, सो टाइल कलर मेरा ग्रेश हो गया। तो अभी मैंने अगर यहाँ पे बेस कलर में अगर मैंने ब्लू कलर भी दिया रहेगा डजेंट मैटर, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टाइल मैप अप्लाई किया हुआ है, और टाइल मैप में मैंने यहाँ पे टाइल का कलर ग्रे सेट किया हुआ है, तो ब्लू कलर देके भी कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पे बेस कलर कुछ भी रखो, इट विल नॉट मैटर। अगर मैंने बेस कलर यहाँ पे पिंक भी कर दिया तो टाइल का कलर पिंक नहीं होने वाला है, क्योंकि ये हम लोगों ने अलग से एक मैप अप्लाई किया हुआ है, टेक्सचर अप्लाई किया हुआ है, और वो टेक्सचर का कलर जो है वो वाइट है। ओके, बट अगर टेक्सचर में भी कलर नहीं चाहिए, टेक्सचर में भी अगर मुझे कोई बिटमैप चाहिए या इमेज चाहिए, तो यहाँ पे देखो टाइल सेटअप में टेक्सचर लिखा हुआ है, उसके बाजू में नन लिखा हुआ है। ओके, सो यू कैन सी इन एडवांस कंट्रोलर में टाइल सेटअप लिखा हुआ है, टेक्सचर है, और यहाँ पे नन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे नन पर क्लिक करेंगे हम लोग, इस पे नो टेक्सचर अप्लाइड है इसलिए नन लिखा हुआ आ रहा है। तो वापस से ब्राउजर ओपन होगा, मटेरियल मैप ब्राउजर, और इसमें हम लोग सर्च करेंगे बिटमैप के लिए। बिटमैप लुकअप मत लेना, बिटमैप लेना से। ओके, सो बिटमैप हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही बिटमैप सिलेक्ट किया, एक ब्राउजर ओपन होगा कि अगर आपके पास में इमेज है, टेक्सचर इमेज है टाइल का या स्टोन का या वुड का, एनी पैटर्न का, तो आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हो। यहाँ से हम लोग ब्राउज कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे अगर देख लेते हैं कि मेरे पास में कोई टेक्सचर मटेरियल जरूर होगा, तो यहाँ से हम लोग ब्राउजिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से टेक्सचर यू हैव टू डाउनलोड दिस। जैसे टेक्सचर्स यू हैव टू डाउनलोड टू अप्लाई। सपोजिंगली ये फ्लोरिंग टेक्सचर चाहिए था, इसे सिलेक्ट करके ओपन किया, अभी वहाँ पे ये वाला बिटमैप अभी अप्लाई हो जाएगा इंस्टेड ऑफ कलर। तो कलर के बदले अभी हमें बिटमैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे व्यू के अंदर हमें वो बिटमैप नहीं दिख रहा है, हमें तो सिर्फ कलर ही दिखाई दे रहा है। सो वी आर नॉट एबल टू सी द बिटमैप जो हम लोगों ने लोड किया था टाइल के अंदर। सो आई कांट सी दैट बिटमैपिंग। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सेलेक्ट द फ्लोर, कम इन। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड्स लिखा हुआ है, किसी पर्सपेक्टिव के बाजू में स्टैंडर्ड इज बीन रिटन डाउन राइट ओवर हियर, स्टैंडर्ड्स। और इसमें यहाँ पे मटेरियल्स में जाओ एंड स्विच दिस मोड टू रियलिस्टिक विथ मैप्स को। इस मोड को एक्टिव करेंगे रियलिस्टिक विथ मैप्स, एंड यू कैन क्लिक ऑन दैट, wait for a few seconds to update it. Now you can see the bitmaps जो हम लोगों ने लोड किया हुआ था। come up perfectly। वंस अगेन अगर हम लोग टाइल्स में आते हैं, तो अगर मुझे ये जो स्पेसर है बिटवीन वन टाइल टू अदर, इसकी स्पेसिंग अगर कम करनी है, ग्राउट की स्पेसिंग अगर कम करनी है, तो यहाँ पे नीचे टाइल सेटअप के नीचे देखो ग्राउट सेटअप लिखा हुआ है। एंड ग्राउट सेटअप्स में से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो ग्राउटिंग का। तो अगर मैंने ग्राउट का कलर व्हाइट लिया तो व्हाइट हो जाएगा, अगर ग्राउट का कलर ब्लैक लिया तो ब्लैक होगा। ठीक, तो ग्राउट का कलर आप अप्लाई कर सकते हो, या ग्राउट में भी आप कोई टेक्सचर लोड करके रखना है तो आप टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हो। बिटमैप ले लेता हूँ यहाँ पे से, और सपोज यही मैंने वुडन का एक बिटमैप ले लिया, तो ग्राउट्स में भी कैसा रहेगा, वो इमेज दिखाई देगा वुडन का। और अगर वो इमेज नहीं चाहिए तो हम लोग यहाँ पे से इसको क्लियर कर सकते हैं, राइट क्लिक क्लियर, तो इमेज निकल जाएगा और कलर आ जाएगा फिर से। कलर ओके है, बट अगर इसका स्पेसर अगर हमें चेंज करना है तो हम लोग यहाँ पे देखो गैप्स लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल गैप्स और वर्टिकल गैप्स करके, तो इसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं गैप्स को। सो गैप्स को मैंने यहाँ पे 0.1 किया, तो 0.1 का हो गया। अगर और कम करना है तो अगर हम लोग और भी कम कर सकते हैं या इंक्रीज भी कर सकते हैं, 0.05 भी ले सकते हैं। स्पेसर को हम लोग रिड्यूस भी कर सकते हैं, और अगर स्पेसर बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो वी कैन जीरो डाउन ऑल्सो स्पेसर्स को।
तो स्पेसर जो हो गए वो 0 हो जाएगी, नो गैपिंग्स। और हल्का सा अगर स्पेसर चाहिए तो हम लोग हल्का सा स्पेसिंग भी दे सकते हैं, वेरी वेरी लाइट स्पेस जब अप्लाई करेंगे स्पेसर देंगे तो ये हमारा फ्लोर टाइल्स जो था वो क्रिएट हुआ। और टाइल का साइज अगर आपको और बड़ा करना है तो यहाँ से और इंक्रीज कर सकते हैं टाइल साइज को। यहाँ से सपोज टाइल स्पेसर is there. Now if we look into the व्यू, कैमरा व्यू में जाके रेंडर करके देखेगी। टेक्सचर इज नॉट विजिबल, कलर आ रहा है और बार टेक्सचर कलर इज अपीयरिंग। ओके, अगर मैं स्टाइल मैप को सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ और जस्ट स्टाइल अप्लाई करता हूँ, बिट मैप अप्लाई करता हूँ डायरेक्टली। error with that tile map actually. Take tile maps. फ्लोर टाइल्स डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, टाइल मैप लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्टली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। If you feel that you don't want to use tile maps, you want to use different texture, वुडन टेक्सचर चाहिए रहता, तो यहाँ पे से क्या कर सकते हैं, मटेरियल में यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करके बिटमैप सर्च कर सकते हैं। बिटमैप कैन अप्लाई द बिटमैप ऑफ द वुडन फ्लोरिंग अगर है आपके पास में। Cool. Select wooden flooring or any type of flooring that you want to apply. डिफरेंट टाइल भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइल यूज किया, this type of tile and article render and see. थोड़ा ग्लॉसी ज़्यादा है, थोड़ा ग्लॉस कम करना है इसका, तो ग्लॉसनेस थोड़ा सा कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सपोर्टिंग पैरामीटर में जाते हैं
हम लोग यहाँ पे रफ कर देते हैं, 0.8 लेते हैं, 0.9 ले लेते हैं। तो जितना वैल्यू मैं बढ़ाऊंगा, लाइक 0.9 0.8 इतना रफ होते जाएगा। तो उसमें भी 0.2 हल्का सा लॉस रहेगा, जैसे मैटेड एंड शाइनी। दिस इज ओके, लेट्स रेंडर एंड चेक। हल्का सा मैटेड रहेगा, which is perfect। थोड़ा सा डार्क भी दिख रहा है as compared to the image। थोड़ा सा लाइट करना है इसको, इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे कोट पैरामीटर तो वाइट है, दैट्स फाइन। और इसका जो कोट कलर है वो 0 कर देंगे, जैसा टेक्सचर है वैसा कलर दिखेगा। तो क्या होगा, थोड़ा सा डार्क आएगा। देन मैं ये मटेरियल स्कर्टिंग्स पर भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो स्कर्टिंग्स क्लिक किया हुआ था, स्कर्टिंग पे भी सेम मटेरियल असाइन करेंगे। तो मटेरियल को सिलेक्ट किया, स्कर्टिंग को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। तो वही मटेरियल जो भी है वो हमारे स्कर्टिंग्स पर भी अप्लाइड हो गए रहेंगे। यहाँ पे भी इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो UVW मैपिंग अप्लाई किया था फ्लोरिंग के लिए, तो ये UVW मैप को हम लोग राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे एंड स्कर्टिंग को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके पेस्ट इंस्टेंस करेंगे। तो सिमिलर मैपिंग अप्लाइड हो जाएगा। बॉक्स मैप ले लेते हैं, इसका थोड़ा सा हाइट इंक्रीज कर लेते हैं सो दैट स्ट्रेच ना हो। परफेक्ट। स्कर्टिंग पर भी स्टाइलिंग अप्लाई हो गया। फ्लोर और स्कर्टिंग दोनों पे मटेरियल असाइंड है, सिमिलर मटेरियल। मैटर लाइक जैसे आपको मटेरियल को एडिट करना है, थोड़ा सा कम रफनेस और कम करना है। कोटिंग पैरामीटर में आके रफनेस मैंने 0.2 दिया था, 0.1 ले लेते हैं। रफनेस कम होगा, थोड़ा शाइन ग्लॉस ज़्यादा रहेगा। रफनेस 0 कर दूंगा तो टोटली ग्लॉस हो जाएगा, ग्लॉसी भी नहीं रखना है। वेरी मच ओके। रन देखें, you just have to play with this parameters, roughness and coating parameters and all the stuff। डिफरेंट मटेरियल क्रिएट करना है तो आप अदर मटेरियल भी क्रिएट कर सकते हैं। गेन मटेरियल, जनरल फिजिकल मटेरियल, सपोज बेड की हेडबोर्ड के लिए क्रिएट करना है तो यू कैन नेम दिस एज हेडबोर्ड। यहाँ पे हम लोग हेडबोर्ड में मोड को एडवांस करेंगे, रिफ्लेक्शन नहीं रहेगा तो 0 करेंगे रिफ्लेक्टिविटी को। तो रिफ्लेक्टिविटी 0 किया। कोटिंग पैरामीटर अभी भी 0 है क्योंकि इसमें कोई कोट नहीं चाहिए। तो फैब्रिक मटेरियल चाहिए था, इसके लिए कोई कोटिंग नहीं आएगा इसके ऊपर। डायरेक्टली हम लोग बेस कलर में यहाँ पे बिट मैप ले लेंगे। अगर आपके पास में कोई फैब्रिक मटेरियल है, से फैब्रिक मटेरियल जैसा पिक किया और ओपन किया, वेलवेट मटेरियल डाउनलोड किया हुआ है टेक्सचर वेलवेट का। तो वेलवेट मटेरियल में कोई कोटिंग नहीं होगा तो कोटिंग 0 रहेगा, रफनेस भी 0 रहेगा, सो नथिंग इन कोटिंग।
बेस कलर 1 रहेगा, रिफ्लेक्शन नहीं रहेगा तो रिफ्लेक्शन भी 0, ट्रांसपेरेंसी भी 0 रहेगा। सब सरफेस इमेशन कुछ भी ऑन नहीं रखेगी। यू हैव टू जस्ट नो कि लाइक कौन से ऑब्जेक्ट से क्या होता है। थोड़ा सा रफ करना था तो उसको हम लोग रफन कर सकते हैं मटेरियल को, तो थोड़ा सा रफन रहेगा। हाफ लेते वैल्यू 0.5 रफ करेंगे मटेरियल को। एंड ये मटेरियल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट का जो हेड बोर्ड है उसको असाइन करना था। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, आइसोलेट कर लेता हूँ सो दैट मुझे क्लियरली पता चले कि मैं राइट ऑब्जेक्ट को ही मटेरियल असाइन कर रहा हूँ कि नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट आइसोलेट किया। अब मैंने इसके ग्रुप को ओपन रिकर्सिवली लिया और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया। ये पूरा मैश ऑब्जेक्ट है और पार्ट्स में है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पार्ट्स को अटैच कमांड लेके अटैच कर देंगे सारे पार्ट्स को। ये सारा एक ही पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इस मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे, सेंड मटेरियल टू सिलेक्शन देंगे और समवेयर कुछ कुछ पार्ट अभी भी अटैच नहीं हुआ है, फिर से अटैच कमांड लेके अटैच करेंगे। अब अटैच हो गया। अब अटैच हो गया है तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी हम लोग यूवी मैपिंग करेंगे बिकॉज ये सीमलेसली कट हो रहा है थोड़ा सा, तो इसको सिलेक्ट करके यूवीडब्ल्यू मैप अप्लाई करेंगे। यूवीडब्ल्यू मैपिंग, और मैपिंग में यहाँ पे प्लानर मैपिंग रख के परफेक्टली देखो फिट आउट भी हो गया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टेक्सचर फिट नहीं है तो यहाँ पे से आप इसका लेंथ है या इसका विड्थ है जो भी है आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ये बेस को अगर आपको असाइन करना है तो बेस को सिलेक्ट करके असाइन टू सिलेक्शन कर सकते हैं। बेस को भी सिलेक्ट करके आप इसको भी यूवीडब्ल्यू मैप अप्लाई कर सकते हैं। मैपिंग टाइप यहाँ पे मैं बॉक्स ले लूँगा। ये शेप जो है बॉक्स टाइप है, थोड़ा सा हाइट को या width को आपको थोड़ा सा, लेंथ को आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। इस तरह से दो ऑब्जेक्ट को, बेड के दो ऑब्जेक्ट को हमने मटेरियल असाइन कर दिया और यूवी मैप भी कर दिया। लोग यहाँ पे ग्रुप को बाद में क्लोज कर सकते हैं। आइसोलेशन से बाहर आने के लिए यहाँ पे क्लिक करो और बैक टू कैमरा व्यू, रेंडर। रेंडरिंग में आपको अभी मटेरियल है इस तरह से फॉर्म में दिखाई देगा, क्योंकि वो ग्लॉस नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें हमने कोई कोड पैरामीटर नहीं दिया है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिया हुआ है। सो जो जो ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्शन या कोड पैरामीटर नहीं देगी वो ग्लॉस या शाइन नहीं करेगा। फैब्रिक कभी भी शाइन नहीं करते, अनलेस अगर लेदर है तो थोड़ा सा शाइन करेगा। अगर लेदर नहीं है, वेलवेट है या लिनन है या कॉटन है तो थोड़ा सा अनकोटेड रहेगा, अनरिफ्लेक्टेड रहेगा। इस तरह से आप मटेरियल्स क्रिएट कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स के लिए और असाइन करते जा सकते हो। रेंडर कंप्लीट हुआ, बेसिक्स मटेरियल एटलीस्ट निकाल कर सकते। डिफरेंट अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोजिंग मैं इसके ऊपर टी पॉट रख लेता हूँ। तो सपोज एक टी पॉट को ग्लास मटेरियल असाइन करना है तो उसके लिए ग्लास मटेरियल भी क्रिएट कर सकते हैं। राइट क्लिक, मटेरियल जनरल फिजिकल,
और यहाँ पे पहले तो नेम दो मटेरियल को, ग्लास शाइन करेगा तो यस देके, कोटिंग देके, नहीं करेगा तो नो देके, कलर हम लोग 0 देके थे। ग्लास जो रहता है वो ट्रांसपेरेंट भी रहता है, मोड को एडवांस कर ठीक है। और ग्लास में रिफ्लेक्टिविटी भी रहती है, तो यस रिफ्लेक्टिंग 1 वैल्यू देके, ट्रांसपेरेंसी भी 1 देके, तो आपका ग्लास मटेरियल बन गया टोटली। फ्रॉस्टेड ग्लास जैसा हो गया, ग्लास में देके ग्लास को transparency value is 1 plus minus. You can assign this material वो भी ग्लास ऑब्जेक्ट बन गया। frosted glass बन गया actually। We want to make it a clear glass, तो clear glass के लिए हम लोग यहाँ पे इस कलर अगर सपोज मैंने ब्लैक कर दिया, doesn't change anything। Let's take reflectance to 0, coating as 1। Doesn't comes getting a clear glass। तो यहाँ से एक प्रीसेट ले सकते हैं, तो प्रीसेट में यहाँ पे मैंने ग्लास प्रीसेट ले लेता हूँ, सॉलिड ज्योमेट्री। So it should create the parameter for us। देखो अगर इसको रेंडर करते ग्लास बन गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स पर आप असाइन कर सकते हो। सो बेस कलर से आप डायरेक्ट बेस कलर सेलेक्ट कर सकते हो, टेक्सचर अप्लाई करना है तो टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो उसके अंदर बेसिकली। ओके, एंड रफनेस देना है तो रफनेस दे सकते हो कलर को। रिफ्लेक्शन मतलब क्या है कि अगर आपको इसे रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट रखना है, फॉर एग्जांपल that reflects back, that is bouncing back basically, that is reflecting material बोलते हैं। इसके लिए फॉइल जो है रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है, तो बाउंस बैक करता है, रिफ्लेक्टिंग बैक करता है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग, दिस इज रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग मटेरियल दैट इज ऑब्जेक्ट दैट इज रिफ्लेक्टिंग बैक बेसिकली, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, shiny materials basically, anything that is metal। ओके, सो मेटल इज रिफ्लेक्टिंग, तो अगर मेटल मटेरियल क्रिएट कर रहे हो तो रिफ्लेक्शन वैल्यू 1 रखो, अगर मेटल मटेरियल नहीं कर रहे हो तो रिफ्लेक्शन वैल्यू को 0 रखो। तो सपोजिंगली मैं यहाँ पे एक मटेरियल क्रिएट करता हूँ, इसमें मोड को एडवांस रखता हूँ, तो
बेस कलर सपोज मैंने यहाँ पे रखा ब्लैक। रिफ्लेक्शन अभी देखो यहाँ पे 1 है, तो इसमें रिफ्लेक्टिविटी है। ओके, अगर रिफ्लेक्शन को मैं 0 कर देता हूँ, ऐसे रिफ्लेक्शन चला जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन को अगर 1 किया तो 1 सेम रिफ्लेक्शन आ रहा है। रिफ्लेक्शन में अगर आपको ग्लॉसीनेस करना है तो आप इसको ग्लॉसी भी कर सकते हो, मीन्स मैट रिफ्लेक्शन भी कर सकते हो। अगर मैंने 0.5 वैल्यू लिया तो ये मैट रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो गया। अगर 1 करूँगा तो पूरा ग्लॉसी हो जाएगा। ओके, मेटल कर देना है तो इसे हम लोग 1 कर देंगे वैल्यू को, तो ये पूरा मेटेलिक हो जाएगा, ये मेटल हो जाएगा कम्प्लीटली, मेटल में कन्वर्ट हो गया। ओके, मेटल का कलर आप यहाँ से, बेस कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि थोड़ा सा ग्रेश होता है, क्योंकि आपका टोटली मेटल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। मेटालिक ग्रेश। ओके, प्योर वाइट भी कर दोगे तो ये आपका मिरर हो गया इनफैक्ट ये पूरा। तो अगर मिरर कर देना है तो ये रहा, ये आपका मिरर मटेरियल बन गया। वॉल पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। असाइन कर लेता हूँ ये वाला मटेरियल, रेंडर करेगी। जो रेंडर करेगी, कैसे अभी मुझे इस ऑब्जेक्ट पर इसका रिफ्लेक्शन पूरा दिखाई देता है, मिरर बन गया आपका। मिरर का कलर वगैरह आपको चेंज करना है तो जो मेटलनेस आपने दिया है, ये मेटलनेस में आपके ऊपर कलर है तो आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा ऐसा टोन वाला कलर लिया बेसिकली उधर, इसको यहाँ पे रेंडर करता हूँ। पहले एकदम क्लियर दिख रहा था, तो ये कैसा येलोइश टिंट में दिखाई देगा वो। कोटिंग भी अप्लाई करना था, उसको कोटिंग भी अप्लाई कर सकते हो। कोट कलर भी आप सिमिलर ले सकते हो। तो भी यहाँ पे पूरा टिंट में दिखाई देगा आपका मेटल या मिरर, सॉरी। तो थोड़ा सा अगर ब्रॉन्ज चाहिए तो ब्रॉन्ज ले सकते हो, या अदर टिंट कलर चाहिए तो टिंट कलर ले सकते हो। ये रिफ्लेक्टिंग हो रहा है विद टिंटेड कोटिंग जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है या अप्लाई किया हुआ है। प्ले विद इट। अगर मुझे रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा रफनेस चाहिए था तो मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा रफनेस ऐड ऑन कर सकता हूँ, थोड़ा सा रफनेस रहेगा रिफ्लेक्शन में, तो भी एकदम क्लियर रिफ्लेक्शन नहीं रहेगा, थोड़ा सा मैटेड में रहेगा, जैसे मैट रिफ्लेक्शन हो गया। Okay, तो आप थोड़ा सा रफनेस के साथ प्ले कर सकते हो। ग्लॉसीनेस में मैंने रफनेस उसका दिया था 0.8, आप इसे 1 कर देता हो तो टोटली ग्लॉसी हो जाएगा। प्ले अराउंड विद इट, दैट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का वैल्यू, कलर एंड एवरीथिंग। ट्रांसपेरेंसी, एज आई टोल्ड यू, फॉर मेकिंग ट्रांसपेरेंट मींस सी थ्रू बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट करने के लिए। तो अगर मैंने एक और मटेरियल में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, एक्सप्लेन मोड को इसे एडवांस किया और ट्रांसपेरेंसी वैल्यू मैंने 1 रखा, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल बन जाएगा। बट ट्रांसपेरेंट ऑल्सो इट्स matte transparent actually,
इस कलर में यहाँ पे व्हाइट कर लेता हूँ, कोटिंग में तो 0 रखता हूँ। ट्रांसपेरेंसी like an encourage instead इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था, बट हो नहीं रहा है। इंक्रीज करता हूँ, it doesn't make that transparent। ब्लैक कलर करने पर बंद करते हैं। सो मेटलनेस फिर से बन किया, मेटल बन गया। मेटल ट्रांसपेरेंट make transparent, but why is this whitish is coming? So अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर असाइन करता हूँ, सी थ्रू होना चाहिए। Doesn't look like a complete see-through. Yes, it is actually. But इसमें रिफ्लेक्शन नहीं है, इसमें रिफ्लेक्शन ऐड करना पड़ेगा ताकि बाउंस ऑफ लाइट हो सके। इसके हम लोग यहाँ पे कोटिंग पैरामीटर में कोटिंग दे दीजिए, कोटिंग रहेगा उसमें। आपका थोड़ा सा ग्लास टाइप दिखाई देगा ऑब्जेक्ट। एंड इवन इसको थोड़ा सा हल्का सा और ज़्यादा रिफ्लेक्टिव करना था, यहाँ पे रिफ्लेक्टेंस वैल्यू है, रिफ्लेक्शन वैल्यू 1 करेगी और इसे रफनेस के बदले हम लोग यहाँ पे ग्लॉसीनेस दे देंगे। लेट्स कीप इट रफ ओनली, रफनेस वैल्यू 0 ही रखेगी। और अभी इसको रेंडर करके देखते हैं। Yes, we can see a bit of reflectings in the glass. ग्लास मटेरियल आप अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हो, या तो फिर प्रीसेट्स भी आप यूज कर सकते हो। तो अगर क्रिएट नहीं करना है तो प्रीसेट्स दिया हुआ ही है, बट अगर क्रिएट करे तो आप पैरामीटर इंसर्ट्स कर सकते हो। थोड़ा सा थिक करना है ग्लास को, थोड़ा सा थिन ग्लास दिख रहा है। यहाँ पे मटेरियल एडिटर में आओगे, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में तो थिन वॉल है, उसको ऑफ कर दो। थिन वॉल ऑफ कर दिया तो थोड़ा सा डेप्थ रहेगा, उसमें थिकनेस रहेगा। थिक ग्लास दिखाई देगा। थिकनेस ऑफ ग्लास अगर आपको कम करना है, ज़्यादा लग रहा है, 10 mm मैंने दिया हुआ है डेप्थ में, 10 mm, तो इसको हम लोग कम कर सकते हैं, 1 mm कर सकते हैं या 2 mm कर सकते हैं। हम लोग इसको भी रेंडर करेंगे। थोड़ा सा ग्लास थिक ग्लास जैसा थोड़ा सा दिखाई देगा। Can totally control the material using the parameters. पैरामीटर्स आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, कौन से पैरामीटर्स से क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं।
हिसाब से आपको जो आउटपुट भी जो आपका मिलेगा रियलिस्टिकली मिलेगा। बट अगर आप पैरामीटर्स को नहीं समझ रहे हो एंड यू आर नॉट अप्लाइंग द पैरामीटर्स ऑन द मटेरियल जैसे उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, then you will not get an output as realistic as well। आपको आउटपुट भी एकदम अनरियलिस्टिक ही दिखाई देगी because you are not assigning the material parameters correctly। you can see now मेरा क्लास एकदम perfectly दिखाई दे रहा है, सॉलिड क्लास जैसा दिख रहा है। कैमरास भी मैंने प्लेस किए हुए थे रूम्स में, उसके बाद में हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। रेंडर है बेसिकली। और मटेरियल एडिटर में देयर इज मोर एज वेल। अगर इसमें नीचे अगर आप जाओगे ट्रांसपेरेंसी के नीचे, फिर आपको एमिसिव एमिशन करके लिखा हुआ मिलेगा। एमिशन मतलब ग्लो मटेरियल। तो अगर आपको मटेरियल को ग्लो करना है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे इस मटेरियल को एमिशन 1 रखा और यहाँ पे कलर मैंने दिया सपोज येलो, तो वो एक्चुअली ग्लो करेगा येलो में। okay, जो भी कलर लोगे, सपोज मैंने कलर दिया ब्लू, तो ब्लू में ग्लो करेगा। व्हाइट लूंगा तो व्हाइट में ग्लो करेगा। ओके, और अगर मैंने यहाँ पे एक टी पॉट बनाया रहता और उसको मैं असाइन कर देता वो टी पॉट को, तो एक्चुअली वो टी पॉट जो है वो एक्चुअली ग्लो करेगा भी लाइक लाइट की तरह। तो ये मटेरियल, ये एमिसिव जो है, ये हम लोग टेलीविजन स्क्रीन है या मोबाइल स्क्रीन है या ट्यूबलाइट्स है, ओके, उस पर हम लोग असाइन कर सकते हैं ताकि सॉर्ट ऑफ ग्लो दिखाई दे। ग्लो होते हुए दिखाई देगा वो। इसमें लाइट नहीं है बट इट्स लाइक ग्लोइंग एक्चुअली। इट्स नॉट लाइट बट इट इज जस्ट ग्लोइंग मटेरियल। रेडियंट मटेरियल जो वॉचेस में होते हैं जो ग्लो करते हैं, उस हिसाब से वो ग्लो करेगा। तो अगर मुझे इसमें टेक्सचर ऐड करना रहता है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरा टीवी स्क्रीन है, जिस इन एग्जांपल के लिए, तो अगर ये मेरा टीवी स्क्रीन है तो मटेरियल को मैं फिर से क्रिएट करता हूँ। टीवी स्क्रीन इमेज डाउनलोड कर लेते हैं टीवी स्क्रीन का। तो इस बार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टीवी स्क्रीन मटेरियल को सिर्फ एमिशन वैल्यू 1 रखा और उसको यहाँ पे कलर जो है वो वाइट दे देता हूँ। बट वो वाइट ग्लो नहीं चाहिए था मुझे, इमेज चाहिए था उसके बदले। तो यहाँ पे इसके बाजू में, कलर के बाजू में बॉक्स है, उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे सर्च करोगे बिटमैप के लिए, बिटमैप और ओके। जहाँ पे भी आपके पास बिटमैप है ऐसे सिलेक्ट करके ओपन कर देना है। कलर के बदले वहाँ पे इमेज आएगा और ये फाइल हम लोग यहाँ पे असाइन कर देंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट पे मैंने असाइन तो कर दिया है बट उस पर यूवी मैपिंग अप्लाई करना पड़ेगा। मैप्स फिर भी हमें यहाँ पे वो इमेज दिख नहीं रहा है। एक बार रेंडरिंग में मटेरियल रियलिस्टिक मैप लेके ऑन करेगी तो अभी यहाँ पे हमें इमेज दिखाई देगा। ग्लो दिख रहा है, रेंडर करके देखूंगा तो स्क्रीन थोड़ा सा ग्लो होगा और इमेज भी दिखाई देगी साथ में। ज़्यादा भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ग्लो का वैल्यू आप और बढ़ा सकते हो।
लुमिनेंस और थोड़ा बढ़ा सकते हैं 1500 का, तो 2500 कर सकते हैं। ग्लो और बढ़ जाएगा, जितना लुमिनेंस बढ़ाओगे उतना ग्लो बढ़ेगा। ग्लो चाहिए उतना और बढ़ाते जाओ, ग्लो बढ़ेगा। स्क्रीन पर आप इस तरह से मटेरियल्स का असाइन कर सकते हैं। Nice screen looking object, यानी सिर्फ मटेरियल का आप यूज कर सकते हो ऑन दिस केस। ओके, दिस क्लियर टू ऑल। मटेरियल एडिटर में बेसिक पैरामीटर में बेस कलर, ट्रांसपेरेंसी, रिफ्लेक्शन, ट्रांसपेरेंसी और एमिसिव एमिशन का ऑप्शंस था जो हम लोग ने चेंज कर करके अप्लाई किया। तो कोई भी मटेरियल जब हम लोग लेते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंस क्या होता है कि फर्स्ट थिंग मटेरियल जब आप लोगे तो उसमें ध्यान रखना रहता है कि कोटिंग है कि नहीं बेसिकली उधर। सो कोटिंग के अगर कोटिंग रहेगा तो उसका वैल्यू कितना रहेगा बेसिकली उधर। सेकेंड थिंग इसमें यू नो रफनेस रहेगा कि नहीं रहेगा। कोटिंग के अंदर देन थर्ड थिंग इसका बेस कलर क्या रहेगा, या बेस कलर नहीं रहेगा तो लाइक अगर उसका बेस टेक्सचर क्या रहेगा बेसिकली उधर। देन फिफ्थ थिंग वी नीड टू ध्यान में रखना है कि रिफ्लेक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा बेसिकली उधर। ओके, तो अगर रिफ्लेक्शन रहेगा तो उसका वैल्यू कितना रहेगा और उसका ग्लॉसीनेस कितना रहेगा। तो ग्लॉसीनेस वैल्यू जितना आप 1 रखोगे तो वैल्यू इज 1 बेसिकली, then it will be super glossy। और अगर वैल्यू कम करोगे ग्लॉसीनेस का बेसिकली, so if value of glossiness is 0.6 or 0.7, okay, or less, it be matte। इस मैट में रिफ्लेक्शन आएगा आपका। you need to think of these parameters, like कोटिंग रहेगा तो अगर रहेगा तो उसका वैल्यू कितना रहेगा कोटिंग का, कोटिंग में रफनेस रहेगा कि नहीं रहेगा, कोटिंग में बेस कलर रहेगा कि नहीं रहेगा। ओके, सॉरी, बेस कलर रहेगा तो कौन सा रहेगा, बेस टेक्सचर रहेगा तो कौन सा रहेगा, रिफ्लेक्शन रहेगा तो रिफ्लेक्शन में वैल्यू कितना देगी, ग्लॉसीनेस कितना देगी। ओके, सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देन मेटल करना है तो मेटलनेस,
करेंगे बेसिक लेदर। मेटलनेस की वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे तो मेटलनेस होगा बेसिक लेदर। ओके, देन ट्रांसपेरेंसी दिया रहेगा बेसिक लेदर। ट्रांसपेरेंसी का वैल्यू क्या रहेगा बेसिक लेदर। देन ट्रांसपेरेंसी में रफनेस कितना रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा कि नहीं रहेगा बेसिक लेदर। डेप्थ कितना रहेगा। Okay. All this thing you need to be very careful basically. Then next thing is about seventh is about self illumination. Yeah, emissive. Okay. Emissive रहेगा तो कितना रहेगा बेसिकली वैल्यू ऑफ emissive। कलर, बिटमैप रहेगा तो बिटमैप बेसिकली luminance। all these things matters when you are dating any material basically। Okay, so ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है whenever you are creating any form of material। Okay, so this is important। Okay. Noted। this is noted। Yes, sir. So please keep a practice of this much। okay, material का practice रखो। नेक्स्ट क्लास में सी कि लाइक विंडो है या वॉल है। ओके, अदर ऑब्जेक्ट्स पे कैसे मटेरियल असाइन कर सकेंगे। तो वॉल ऑब्जेक्ट्स है या विंडो ऑब्जेक्ट्स है, उस पे मटेरियल कैसे असाइन करना है उस पे देखेंगे। तो ये अभी हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्ट मटेरियल क्या बेसिकली ऑब्जेक्ट्स, जैसे लूज ऑब्जेक्ट जैसे हम लोगों ने बनाया था, बेड है या सोफा है या आपका फ्लोरिंग है या सीलिंग है, इन सब पे मटेरियल असाइन करना है तो इजी। बट ऑब्जेक्ट लाइक वॉल है या डोर है, विंडो है, क्योंकि इसमें पूरा असेंबली मॉडल है पूरा बेसिकली। ठीक है, मल्टीपल पार्ट्स है, तो मल्टीपल पार्ट्स को एक साथ मटेरियल कैसे असाइन करें, तो इसके ऊपर हम लोग देखेंगे यूजिंग दी मल्टी सब ऑब्जेक्ट मटेरियल। तो आज हम लोगों ने फिजिकल मटेरियल का पार्ट जो है वो कंप्लीट किया। सो नेक्स्ट क्लास में we'll see on the other topics, that's tomorrow। okay, so Tuesday, Thursday and Friday। okay, तो कल मल्टी सब मटेरियल का देखेंगे जिसपे हम लोग डोर या वॉल्स पे असाइन करेंगे। okay, Okay, sir. एनी डाउट एनीबडी हैज, कुछ डाउट है, क्वेरी है, उसको पूछना है। okay. If there are no doubts, you can leave the meeting। if there are doubts, stay online and ask।
Samira, you have doubt? Hello, Kunal. Yes, sir. Just 1 minute. Sir,